So today we are doing, first of all, I shall introduce myself. Myself Gayatri Dilip Kumar Vag from BMC Department, Goregaon East, MPS Secondary School. So students, with the consent of revision, today we will revise the chapter number 6, that is empowerment of women and the weaker section. Okay, we will revise the main topics of this chapter. Okay. Now, see students, empowerment of women at the weaker section. In this lesson, we will study or revise these given topics. That is Bhudan movement. After then, manifestation of women empowerment. Power that after that the Chipko movement, anti-liquor movement, International Women Year, law for women, awareness against the dowry tradition. After that, we will take a review of family codes, trial involving alimony, the Commission of Sati Act, Protection of Human Rights Act, Reservation for Women, Scheduled Caste and Tribes, and last non-matic and denotified tribes and minorities. Okay, so let us revise this chapter. So students, as we study in the previous chapters, what was the condition of the uh, condition of India after the post-independence. Okay, now this is also the area where we have to study. That is the study status of women during post-independence. So on the screen you can see, or you can make a review of that thing, that what is the condition of women, what was the condition of women uh, before pre-independence and after the post-independence. Okay, pre-independence, independence के पहले, और post independence after the independence, means just after the independence. Okay, now this is the status of our country's women, that they was very deprived state. In addition, they were overwhelmed by the practice of polygamy, sati, child marriage, and female infanticide. After that, improvement came about in their condition with the advent of Islam, and they were given rights. It means what, कि जब post independence का period था, उससे जैसे जो कंडीशन हमारी प्री इंडिपेंडेंस थी, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन, हम लोग विमेन के स्टेटस के बारे में बोल रहे हैं कि जिस तरह से कंडीशन जो थी वो बहुत खराब थी, क्योंकि जो लेडीज थी दे वर ओनली फॉर द मीन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड टू टेक केयर ऑफ होम. ओके, इतना ही काम हुआ था कि उसने अपना घर संभालना है और बच्चे पैदा करके उन बच्चों को संभालना है, सिर्फ इतना ही स्टेटस वो वुमेन को दिया करते थे. आफ्टर दैट दे आर प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी. पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादियां करना. जो आदमी थे, जो मेन था तब का, तो वो एक से ज्यादा शादी कर सकता था. उसके ऊपर कोई भी टाइप का रूल या रेगुलेशंस नहीं था, कोई भी उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि वो किसी तरह से ये बात, वो अगर वो चाहता है तो एक वाइफ, अगर वो चाहता है तो दूसरे साल दूसरी, तीसरे साल तीसरी. इसलिए आपने देखा होगा कि महाराजा जो हुआ करते थे उनके साथ साथ वाइफ हुआ करती थी, वो जीता करते थे, रानियों को जीता करते थे. तो इस टाइप की जो तो पॉलीगमी ये सब चलता था पहले. आफ्टर देन सती, सती प्रथा होती थी. सती मीन्स इफ वन वुमेन्स husband was dead, so next day she was also have the birth on that day. ठीक है, ऐसे जैसे चिता सजाते हैं, वैसे ही चिता सजा के उसके ऊपर उस लेडी को, जो विधवा हुई है, उसको बिठा देते थे और उनको जिंदा जला दिया जाता था. तो इसको सती प्रथा बोलते थे. तो इस टाइप का काम होता था. आफ्टर दैट चाइल्ड मैरिज इज देयर. बचपन में ही बच्चों की शादी कर दिया जाते थे. छोटी छोटी लड़कियों की शादी बड़े बड़े आदमियों के साथ में कर दी जाती थी. वो अंडर एज रहती थी, फिर भी उनके साथ साथ 7 साल की जो लड़की थी उसकी शादी एक 30-32 साल के उम्र के आदमी के साथ हो जाया करती थी. दिस इज अ चाइल्ड मैरिज. ओके, उसके बाद फीमेल इन्फेंसिटी मतलब अगर कोई लड़की पैदा होती है घर में तो उसको मार दिया जाएगा, नहीं तो उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाएगा. तो ये सारी चीजें जो थी, ये हमारे कल्चर में थी पहले.
Okay, it is in our culture. The when the post independence period, during this post independence period. So because of all this happened because of the men centered mentality और मेल centered mentality. तो ये सब क्यों होता था? क्योंकि हमारा जो सोसाइटी थी, जो हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर है, वो सारी की सारी मेन डोमिनेंट सोसाइटी है या फिर मेन कल्चर्ड सोसाइटी है, मेन मेंटेलिटी सोसाइटी है कि हमारे इधर जो आदमी, जो घर का मेन लीडर है पुरुष, उसको जो चाहिए वो जैसा चाहिएगा वैसे ही घर में होता है। और आज भी मेरे ख्याल से आपके मेरे जो अभी इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर में पापा की ही सुनी जाती है, मम्मी की सेकेंडली सुनी जाती है। ठीक है, पहले पापा की सुनी जाती है, पापा के नाम से ही सारा कुछ चलता है। हमारे इंडिया में फिर भी फादर का नाम इम्पोर्टेंट होता है, अभी कुछ सालों से मदर का नाम इम्पोर्टेंट होने लग गया, लेकिन केवल पहले फादर का ही नाम इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो दिस इज द मैन centered mentality. So we have to focus in this chapter for the empowerment of women. किस तरह से women जो थी उसका status बदला, इसके अंदर बहुत सारे सोशलिस्ट ने काम किया, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जिसके अंदर केवल विमेन पार्टिसिपेट करके उन्होंने ये सारे रिवॉल्यूशन लेके आए. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज that is Bhudan movement. Now Bhudan movement, this is the one main movement, or we can say the very important movement that Vinoba Bhave made use of women power in the Bhudan movement, which he had started placing with the faith in the Mahatma Gandhi's philosophy. So for this movement, only women volunteers carried the message of Bhudan to all parts of India. It means what? कि इस भूदान मूवमेंट के लिए, भूदान मतलब भू मीन्स जमीन, जमीनों का दान करना. अब जमीनों का दान कौन करेंगे? जो बड़े बड़े जमींदार थे, जहाँ पे जो लोग हैं वो मजदूर के जैसे सालों साल काम किया करते थे, लेकिन उनमें से उनको उतना पैसा नहीं मिलता था, उतना खर्चा नहीं निकाल सकते थे कि उनके पास में इतना पैसा नहीं रहता था. तो फिर इसके ऊपर ये स्टार्ट हुआ कि भूदान कर दिया जाए, मतलब जमीनों का दान कर दिया जाए. जो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनको इतनी बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने छोटे छोटे जो किसान है उनको ये जमीन जो है वो दान कर देनी है. तो इस चीज के लिए, इस पॉइंट के लिए तो विमेन जो थी, विमेन वॉलंटियर्स, दे हैव फॉट फॉर दिस मूवमेंट. सो women played a significant role in the Telangana peasant arms struggle. So this movement was started in Pochampalli, that is in Telangana. So तेलंगाना ही में स्टार्ट हुआ था. एंड आचार्य विनोबा भावे जो थे, उन्होंने ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट की थी. सो इन दिस मूवमेंट वुमेन टेक पार्ट इन वेरी मैसिव प्लेस. बहुत ही बड़े मूवमेंट है, बहुत ज्यादा वुमेन जो थी उन्होंने इस मूवमेंट में पार्ट किया, वॉलंटियर्स बने एंड एट लास्ट दे won this movement. ये जो मूवमेंट है इसको पॉजिटिवली जो विमेन पावर है वो लेके आई. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज भूदान मूवमेंट. इट इज वेरी स्पेशल to show the status of women. Okay, next one is that is manifestation of women power. ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ women पावर मतलब किस तरह से women का पावर हमने देखा. ओके, हमने कैसे उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया. सो इन 1972 अंडर द लीडरशिप ऑफ सोशलिस्ट लीडर मृणाल गौरे, the women in Mumbai participate in the demonstration that came to be known as Latne Morcha. This movement was against the scarcity of supplies of rising prices. So, student, this women specialist or women leader, that is women Gore, Ninal Guruji thi, she is from Mumbai and she participated in the demonstration. Demonstration मतलब एक उन्होंने एक जिसको बोलते हैं मूवमेंट की तरह ही था, उन्होंने एक संघर्ष किया, दैट इज द लाटने मोर्चा. ये डेमोन्स्ट्रेशन जो किया था, इट इज अगेंस्ट द कम्युनिटी लाइक द राइजिंग प्राइस ऑफ ऑल घी, रवा, मैदा व्हेन एनी फेस्टिवल केम. Okay, after that kerosene also had been became very expensive. So for this situation women come together and they
ब्रांडिशिंग देयर रोनल पिन्स, रोलिंग पिन्स मीन्स लाटने, बेलन जिसको हम बोलते हैं वो। तो वो बेलन लेके जो थी, उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया था। तो ये करने के बाद में जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उनको अपने आप ही इन सब चीजों के भाव जो थे वो कम करने पड़े। और हमेशा के लिए अगर दिवाली, होली ऐसा कोई भी त्योहार आता था, तो ये जो सारी चीजें हैं, घी है, ऑयल है, मैदा, रवा, जिससे उस समय मिठाइयाँ बनाई जाती है, या फिर जिसमें केरोसिन जो है वो स्टोव का तब यूज हुआ करता था, तो इन सब का भाव बढ़ा दिया जाता था। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, और उसके जो लीडर थी मृणाल गौरे, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से अगेन दे शोड द पावर ऑफ वुमेन, कि वुमेन का पावर जो था, उन्होंने ये मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को टू का टू कम डाउन टू द this the rising of the price of these all these things. Okay, after that, next one is the Chipko Andolan. So this is also a constructive women power movement, that is the Chipko Andolan, that is held on in 1973. So for this movement was started, was the forest conservation movement in India, in Uttarakhand, and a part of Uttar Pradesh, and went to become a rallying point of many future environmental movements all over the world. It creates a precedent for the starting non-violent protest in India. नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मतलब कोई हथियार ना उठाए बिना, कोई भी प्रहार ना किया बिना, किसी भी तरह से हमला या फिर किसी को मार काट किए बिना आराम से जो मूवमेंट चले, उसको ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट बोला जाता है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा इस टाइप का एक मूवमेंट था। नाउ फॉर व्हाट दिस मूवमेंट वाज फेमस, बिकॉज चिपको आंदोलन, इन दिस आल्सो that Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bahuguna. He started this movement, and to follow this movement, so many women come together. They holding their hand and encircle each tree. You can see on the screen also कि ट्रीज को बचाने के लिए जो भी वहाँ की आदिवासी महिलाएं जो थी, जो विमेन थी, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मुंबई में और सिटीज में रहने वाली वुमेन जो है वही प्रोटेस्ट कर सकती है। नो, नाउ सी दीज आदिवासी लेडीज, ये जो आदिवासी लेडीज वुमेन जो थी, उन्होंने हर एक पेड़ के आगे अपने आप को हाथ से हाथ पकड़ के सर्कल कर लिया, और जो भी पेड़ काटने आते थे उनको बोलते थे पहले हमको काटो फिर पेड़ काटो। तो इन दिस वे दे सेव द ट्रीज। ओके, तो इस तरह से उन्होंने जो इसको पेड़ को चिपक जाया करते थे वो लोग, और बोलते थे कि अब तुम पेड़, एंड दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में आई, तो जो माउंटेन के एरिया थे, जो हिली एरिया थे, जहाँ पे बहुत सारे जो जमीन है वो पड़ी रहती है, उसका कोई यूज नहीं करता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय ऐसे उनको लगा कि अगर हमने इसको पेड़ों को काट दिया और इस जमीन को प्लेन कर दिया, तो यहाँ हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, बट इट इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट। एंड दीज आदिवासी पीपल, इन लोगों के लिए तो जो जंगल है यही इनका घर होता है, तो अगर आपने उनको घर को ही तोड़ डाला तो वो कहाँ रहेंगे। तो इसलिए ये जो आदिवासी महिलाएं थी, विमेन थी, इन्होंने इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया, और जो ट्रीज थी वो बताई उनमें। ऑल दिस द अनसंग हीरोइंस ऑफ चिपको मूवमेंट, ये जो 3 लेडीज हैं, दीज आर द मेन वॉलंटियर्स ऑफ दिस movement, that is Gaura Devi, after that Sudesha Devi and Bachni Devi. The 3 women participated or to create awareness among the women। जो बाकी जो वुमेन थी, बाकी जो लोग थे, उनके अंदर इन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हम लोग कहीं नहीं रह सकते, हमारे घर ही नहीं रहेंगे। सो दिस मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दीज वुमेन। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटी लिकर मूवमेंट। So in 1992, in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. So it received a good process in the other states too. So what is the main motto of this liquor movement? That it is for the
because due to alcoholism, so many sorrow, so many extreme sorrow and poverty come into the home. And for each and everything, the women have to be in the हम बोल सकते हैं कि उसी को अकेले को वो सारा दुख जो था वो झेलना पड़ता था कि अगर उस घर का आदमी अगर शराब पीने लग जाए या शराब के कारण बीमार पड़ जाए या फिर उसकी मौत हो जाए तो ये सारे चीज का जो दुख होता था वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ लेडीज को उठाना पड़ता था कि वो जो उनके घर के जो बच्चे हैं उनको संभालना, घर को संभालना, तो इस तरह से सारे जो काम थे वो उनको करना पड़ता था। सो this anti-liquor movement was started in Andhra Pradesh in the district of Nellore. नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में एंड दिस मूवमेंट आल्सो स्टार्टेड बाय वुमेन। तो वुमेन ने ही वहाँ के गांव की औरतों ने ही ये जो क्योंकि तब क्या हुआ था कि एक मतलब अल्कोहल करने के बाद में मतलब नशे में जो बच्चे थे वो नदी में डूब के मर गए थे। तो इसके कारण इसका बहुत ज्यादा दुख पूरे गांव को हुआ और वहां की लेडीज ने ही ये स्टार्ट किया कि जो एंटी लिकर मूवमेंट है ये स्टार्ट किया कि जो लिकर है उसका बेचना और बनना जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। सो द गवर्नमेंट स्टेट द एंटायर स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट द स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल बेचने पे ये स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पॉलिसी करनी ही पड़ी। So this movement also been successful because of women power. So next one is International Women's Year. So why this year? Now we have celebrated on 8th March in Women Day because of this International Women Year. So the United Nations had declared 1975 as the International Women Year. Okay. जो यूनाइटेड स्टेट नेशन है उसने ही 1975 में ये ईयर जो था 1975 का इट इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वुमेन ईयर। बट वी आर थिंकिंग अबाउट आवर नेशन तो वी हैव टू डेवलप एंड टू शो द equal status of women and men in India. So in 1975, Government of India constitute a committee on the status of women and they appointed Dr. Fulrenu Guha as the chairman of this committee. Now, what is the main motto of this committee? To focus on the status of women. So there are different points which are considered in this committee. That is, see what type of provision we have to make for women in this committee. That is education for women. They have to focus on the difficulty faced by women. What is the position of women with respect to work and livelihood? Their wages relative to man's wages, and after the male-female ratio, birth and mortality rates, and the role of women in the society. All these are the different issues are taken in this committee. जो ये कमिटी बनाई गई उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है ये कंसिडर किए गए and why they are doing this to enhance the status of women. विमेन का स्टेटस बढ़ाने के लिए सोसाइटी में इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया कि अगर हमको विमेन को स्टेटस में ऊपर लाना है तो सबसे पहले शी हैव टू बी एजुकेट, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको आने जाने में रहने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है उस डिफिकल्टीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। आफ्टर दैट वो क्यों अगर सोसाइटी में मैन और वुमेन है तो क्यों सारी फैसिलिटीज मैन को दी जाए वुमेन को नहीं, तो उसको भी फैसिलिटीज दे, उसको भी फ्रीडम दिया जाए कि वो जैसा चाहे वो वैसा कपड़ा पहन सकती है, जैसा चाहिए वो वैसा खा सकती है, रह सकती है, उसको जैसे चाहिए वो कह सकती है। तो दिस इज रिलेटेड टू देयर हर लाइवलीहुड। आफ्टर देन जो कुछ मेहनताना एक आदमी को मिल रहा है उतना मेहनताना लेडीज को भी मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। अगर आदमी को 5 रुपीज पर डे मिल रहा है तो विमेन को भी 5 रुपीज पर डे मिलना चाहिए। तो पहले क्या था, ऐसा अगर 5 रुपीज पर आदमी को मिलता था तो ओनली 3 रुपीज फॉर विमेन, दीज आर द वेजेस। बट
इसके ऊपर फोकस किया गया कि अगर आदमी जितना काम करता है उतने ही लेडी भी उतने घंटे काम करती है, तो दोनों की वेजेस जो है वो सेम रहने चाहिए। आफ्टर दैट द मेल फीमेल रेशो की जो बर्थ रेट है दोनों का, मेल एंड फीमेल, ये समान होना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर फीमेल चाइल्ड हो तो उसको मार दिया जाता था। इससे क्या हुआ कि मॉर्टेलिटी रेट जो थी वो उनकी वुमेन चाइल्ड की वो बढ़ रही थी, कि उनको ज्यादा मार दिया जाता था, या फिर कोई ना कोई कारण से को जन्म नहीं लेने दिया जाता था, और अगर जन्म ले लिया जाए तो उसको मार दिया जाता था। तो ये जो मॉर्टेलिटी रेट है बर्थ का वुमेन का, ये बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये ओके। आफ्टर दैट द रोल ऑफ वुमेन, मतलब जो स्टेटस में वुमेन का क्या रोल है इसके ऊपर भी फोकस किया गया। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट इश्यूज डिस्कस्ड इन दिस कमिटी। नाउ अगेन नेक्स्ट इज, now to enhance the status of women, so contribution of different women socialists and their work. So many different women socialists come forward, men socialists also come forward for this, but we are only focusing on the women empowerment and what is the status of women in uh, this society. So we are doing this, so socialists and their work. So taking into consideration with the all background of this women state status in the society, as we know that government constituted a committee, and for that committee Dr. Full Renugua is worked as a chairman. She made the first committee, that is Stri Mukti Sangharsh Samiti, Stri Mukti Sangharsh Samiti in 1975, and for this all women from all works of life region participated in it. मतलब एक जो समिति बनाएगी स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति, इस समिति में जितने भी लेडीज थी, विमेन थी, फ्रॉम एनी रीजन, फ्रॉम एनी एरिया, वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी धर्म की हो, जात की हो, किसी भी एरिया की हो, हाई क्लास की हो, लो क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो, किसी भी एरिया की हो, किसी भी क्लास की हो, किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी समाज जाति की हो, वो सारी की सारी इस समिति में भाग ले सकते थे, और वहां पे आके वो अपने सारे जो प्रॉब्लम्स है वहां पे शेयर कर सकती थी। और धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आई, तो ये प्रॉब्लम्स फिर सोसाइटी तक कैसे ली जाए, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस की गई है समिति में, तो इनको सोसाइटी तक कैसे ले जाए। अब सोसाइटी तक या फिर पूरे समाज में ये बातें फैलाने के लिए फिर धीरे धीरे एक एक करके जो सोशलिस्ट थी, वुमेन सोशलिस्ट, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए कि वो सारी चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज ज्योति मास्पेकर। ज्योति मास्पेकर जो है वो एक वुमेन सोशलिस्ट थी, और उन्होंने एक सॉन्ग जो तैयार किया, स्त्री मुक्तीची ललकारी। दिस सॉन्ग वाज मेड बाय ज्योति मास्पेकर। आफ्टर दैट मुलगी झाली हो, इज अ स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले मतलब नुक्कड़ पे जो नाटक हुआ करते थे पहले, तो इस टाइप का ये नाटक हुआ करता था। उसका टाइटल था मुलगी झाली हो। तो इसके अंदर वो जो था कि किस तरह से बच्ची के एक फीमेल चाइल्ड जो है वो बर्थ लेता है, और फिर उनके इधर क्या होता है, ये सारे इसके ऊपर वो नाटक जो था, स्ट्रीट प्ले था, वो बनाया गया था। आफ्टर दैट प्रेरक लहरकारी, ये पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब मासिक जो आता है, इस तरह से उन्होंने ज्योति मास्पेकर ने ये जो जो प्रोग्राम्स थे इसके द्वारा उन्होंने समाज में वुमेन का जो स्टेटस है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से सोसाइटी में लोगों ने वुमेन के स्टेटस को बढ़ाना है, तो इसलिए इन्होंने इस टाइप के प्रोग्राम जो चलाया था। आफ्टर दैट स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति बाय सौदामिनी राव, एंड आफ्टर दैट बायजा, स्त्री उवाच, मैत्रीन, स्त्री अन्याय विरोधी मंच। आफ्टर दैट महिला दक्षता समिति, महिला हक, नारी प्रबोधन मंच। All these are the different groups, or different we can say as committees are there, or samitis are there, which are for to enhance the uh, status of women.
ओके, ये सारी जो समितियां हैं, ये सारी जो काम है, ये सारी की सारी किस चीज के लिए थी? विमेन के स्टेटस को सुधारने के लिए, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो जो है वो सामने लाने के लिए कि किस तरह से समाज ने इन सब प्रॉब्लम्स के साथ में डील करना चाहिए। आफ्टर दैट नारी समता मंच मिळून सगळ्या जणी क्रांतिकारी महिला संगठन बाय विद्या बाल, आफ्टर दैट महिला दक्षता समिति by Pramila Dandavate and Akhil Bharatiya Janwadi Mahila Sangathan. All these are the different समितिस। ओके, ये सारी समितियां जो है या फिर ये सारे जो संघर्ष के लिए किए गए, ये जो संगठित की गई समितियां हैं, ये जो लेडीज थी इन्होंने वो आगे लेकर आए। और आफ्टर दैट this is also not satisfied from with these committees. They also started women studies center where only women started to study, and they make their universities also, like Shrimati Nathibai Damodar Thackeray, that is SNDT Women's University, that is in Mumbai. After that, Tata Institute of Social Sciences, which is in Mumbai. After that, Savitri by Phule, Pune University, and Shivaji University and Kolhapur. So all these are the centers which play a role in the critical analysis and developing a vision for women issue. तो women के issue को solve करने के लिए सब जो problems है, major problem जो women face कर रही है, उन सबको खत्म करने के लिए इस तरह से समितियां और कुछ organizations चलाए गए जिससे कि जो स्टेटस है विमेन का ये बढ़ जाए। ओके, आफ्टर दैट लॉस फॉर वुमेन। सो लॉस फॉर वुमेन, सो देयर आर डिफरेंट लॉज व्हिच आर मेड बाय फॉर द वुमेन। अब देखिए, अगर हम किसी से कोई बात डायरेक्टली बोलते हैं तो हमारी कोई बात सुनता नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं पे लॉ में हो, कानून बना दिया जाए, तो ये सारी बातें जो है सबको सुननी पड़ती है। इट इज कंपल्सरी, ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सोसाइटी में बोली गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कोई लॉ नहीं है इसलिए कोई मानता नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि डायरेक्टली इन 1952 डिफरेंट लॉज आर एनेक्टेड, अलग अलग लॉ बनाए गए विमेन के हक के लिए। सो व्हाट वर द लॉ? तो सबसे फर्स्ट इज वुमेन राइट टू एलिमनी, सो इट इज शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी। तो पहला लॉ बना विमेन्स राइट टू एलिमनी। एलिमनी मतलब जो कुछ फादर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर बेटी जो है उसका भी हिस्सा रहेगा। पहले ऐसे था कि जो कुछ फादर की प्रॉपर्टी रहती थी उसके अंदर सिर्फ बेटों का ही हिस्सा रहता था। बट इन 1952 ये जो है स्टार्ट हुआ कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर बेटी का भी हिस्सा रहेगा। इट इज कॉल्ड एज स्त्री धन। इसको स्त्री धन माना जाता था कि जो बेटी है उसके भी कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉपर्टी रहेगी। इससे क्या हुआ? इट मीन्स शी गॉट द इक्वल स्टेटस विद द ब्रदर स्टेटस। जो भाई है उसके साथ में इस बहन को भी सेम स्टेटस मिला। इसलिए अगर उसकी शादी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन नहीं, वो अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने मायके से उतनी सारी चीजें ले सकती, प्रॉपर्टी ले सकती, बिकॉज शी हैव द इक्वल part. Okay, she have the equal share in her father's property. Okay, first one. After that, polygamy was made illegal. जो एक से ज्यादा शादियां करते थे तो ये एक से ज्यादा शादी करनी ये इलीगल हो गई कि कोई भी आदमी with the consent of law only one marriage can be had. एक ही शादी कर सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जो अपनी फर्स्ट वाइफ है उसकी रजामंदी लेके ही दूसरी शादी कर सकता है, नहीं तो ये इलीगल होता है कि अगर एक आदमी एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। आफ्टर दैट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट in 1961 made both giving and taking of dowry recognizable criminal offense. इसके बाद में डाउरी लेना और देना, मतलब दहेज देना और लेना, ये दोनों चीज जो थी वो क्रिमिनल एक्ट मानी गई कि अगर आपने दहेज दिया या दहेज लिया, ये दोनों चीजें जो है ये गैर कानूनी चीजें है। तो 1961 में ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो
बनाया गया, बट फिर भी हमारे देश में कई जगह ऐसी है, कई राज्य ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है कि आज भी डाउरी ली दी जाती है। और आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमने देखे हैं कि अगर डाउरी ना मिले तो जो लड़की है या फिर जो भी वहाँ पे विमेन है उसको जला दिया जाता है या फिर उसके साथ भी कोई एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है उसको। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो 1961 के इस एक्ट के बाद में भी ये जो एक्ट था वो खत्म नहीं हुआ। ये जो काम था लोगों का डाउरी लेना या देना या फिर लड़कियों को परेशान करना, ये बंद नहीं हुआ। एंड अगेन दिस एक्ट वाज अगेन अमेंडमेंट हुई इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। एंड अगेन इन 1984 इट केम इनटू फोर्स। वो नए फिर से बना 1984 में, ये एक्ट फिर से बना। कुछ इसके अंदर और सुधारणाएं की गई और फिर से ये एक्ट बना। After that, she got the Maternity Benefit Act, which gave women the right to get leave from work at the time of childbirth, and it came force into 1961 में। 1961 में ही एक और एक्ट उसकी बेनिफिट के आया, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मतलब है कि अगर वो जब प्रेग्नेंट होती है तो अगर वो कहीं पे काम कर रही है तो उसको लीगली छुट्टी मिलेगी, मतलब पेड छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो मैटरनिटी लीव पे जा रही है तो उसका यहाँ पे पैसा कट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर शी इज वर्किंग एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट एंड गोइंग फॉर द चाइल्ड बर्थ, तो शी गॉट द मैटरनिटी लीव, पेड मैटरनिटी लीव। तो ये 1961 में ये एक एक्ट जो था, ये एक ऐसा एक्ट बना जिससे कि विमेन को बहुत ज्यादा सहारा मिला। ओके, नाउ दीज आर द लॉज फॉर विमेन। नेक्स्ट वन इज family courts. So family courts were established to resolve conflicts arising out of differences within marriage and domestic problems, as well as issues such as alimony, single parenthood, separation, that after the separation, care of child, and over ownership, which are all related to family situation. These family courts give priority to mutual understanding over witnesses and evidences and to counselors over lawyers. So, these family courts being helpful for women. और लेडीज के लिए ये जो फैमिली कोर्ट्स थे ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हुए। क्यों फायदेमंद हुए? क्योंकि इट रिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस विद इन मैरिजेस एंड डोमेस्टिक इश्यूज। जो एक फैमिली में इश्यूज होते हैं जिससे कि जो लेडीज थी वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी। पहला था एलिमनी, कि जो पार्ट हुआ करता था, जैसे पहले उसको अपने फादर के प्रॉपर्टी में भाग मिलता था, अब उसको अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी पार्ट मिलने लग गया, भाग मिलने लग गया उसको, कि जो कुछ हस्बैंड कमाता है तो उसमें से एक पार्ट उसको उसका होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कभी हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो डिवोर्स देने के बाद उसका हस्बैंड का कर्तव्य खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर उसने डिवोर्स लिया है तो हस्बैंड का काम है कि उसको, और अगर उसका कोई बच्चा उसके साथ में है तो इसका पालन पोषण वो करेगा, उसका खर्चा पानी वो देगा। तो ये जो था, इसने क्या किया, विमेन को सपोर्ट कर दिया कि आदमी डर के उसको फिर डिवोर्स दे ही नहीं पाते थे, जैसे तैसे वो दोनों घर में ही सेटलमेंट करते थे। उसके बाद में सिंगल पैरेंटलहुड। तो सिंगल पैरेंटलहुड की इसका मतलब है कि अगर डिवोर्स हो जाता है, किसी कारण दोनों में डिवोर्स हो जाता है, तो पहले ऐसे रहता था कि अगर फादर जो है वो अच्छा कमाता है तो बच्चे की पूरी देखरेख वही करेगा। लेकिन वैसा नहीं रहा। अगर वो जो लेडी है, अगर वो कमाती है और वो अपने बच्चे की देखरेख कर सकती है, तो बच्चे का पूरा खर्च वो चलाएगी और बच्चा केवल माँ के पास में ही रहेगा। तो ये सिंगल पैरेंटलहुड जो है वो भी चला गया। उसके बाद सेपरेशन केयर ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह से, और ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि वो किसी भी चीज के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखा सकती है, अपने नाम से चला सकती है।
ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लेडी चलाती है और नाम भी अपना ही देती है। ठीक है? तो ये हो गया ओनरशिप। तो वो किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वुमेन को सपोर्ट करने के लिए कि वो अब इंडिपेंडेंट रह सकती है, अपना खुद का नाम से काम कर चला सकती है, अपने खुद के बच्चों को अपने नाम से वो बड़ा कर सकती है, उसे हस्बैंड के नाम की ज़रूरत नहीं है। और इवन तो उसको फादर के साथ में हस्बैंड के जो है शेयर मिलेगा, प्रॉपर्टी में उसको शेयर मिलेगा। तो ये सब फैमिली कोड जो 1984 में बना, उन्होंने वुमेन को सपोर्ट किया। ओके, आफ्टर दैट ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमनी 1985। सो स्टूडेंट, ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये सब हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन ये जो 1985 में हुआ एलिमनी का इशू, ये मुस्लिम का था, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुस्लिम जो रिलीजन है वहां पे इस टाइप का कुछ होता था, क्योंकि वहां पे ऐसा था कि अगर एक बार तलाक 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 3 बार बोल दिया जाए तो तलाक हो जाएगा, और उसके बाद में हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बट दिस वुमेन जो थी, ये थी शाह बानो बेगम। तो इनका इनका निकाह हुआ था उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान से। तो आफ्टर शी गॉटिंग डिवोर्स फ्रॉम हिज हस्बैंड, तो शी पुट अ केस इन द हाई कोर्ट फॉर द एलिमनी। इन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एलिमनी के लिए केस दर्ज करवाया था कि मुझे एलिमनी चाहिए। अगर मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स ले रहा है तो मुझे इसका एलिमनी चाहिए, मतलब उसके प्रॉपर्टी में से मुझको शेयर करने चाहिए, बिकॉज शी हैव 5 चिल्ड्रन। ठीक है, उसको 5 बच्चों की माँ थी और 5 बच्चे होने के बाद में इसने उसको डिवोर्स दिया, तो वो अपने बच्चों का कैसे पेट भरेगी, वो कैसे रहेगी? तो इसलिए ये फर्स्ट ऐसी थी जिन्होंने, मुस्लिम वुमेन ऐसी थी जिन्होंने एलिमनी के लिए केस दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में। एंड what have to do, they have to give the right to her, and protection of rights and divorce has passed by parliament में, क्योंकि ये हाई कोर्ट की बात ऐसी है कि जो एज ए रिलीजन जैसे होता है वैसे उनको मूव करना पड़ता है, लेकिन पार्लियामेंट तक ये गई और पार्लियामेंट में उसके इस जो इशू था इसको क्लियर कर दिया कि आपको हस्बैंड के से एलिमनी जो है वो मिलेगी। और तब से जो मुस्लिम लेडीज है उनको भी एलिमनी जो है वो मिलने लग गई। ओके, नेक्स्ट वन द कमीशन ऑफ सती एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट। सो ऑन स्टूडेंट, दिस लेडी दैट इज रूप कुंवर जो है वो 4 सितंबर 1987, she was a Rajput woman, and she made a married with the Mal Singh Shekhawat when she was 18 years old, and Mal Singh was 24 years old, and within 8 months Mal Singh got expired. And what happened, she have to make sati of this lady। ओके, रूप कंवर जो थी उसको सती बना दिया गया, सती किया गया। सो ये जो जब सती बनाया गया उसको या फिर सती कर दिया गया, मैंने आपको बताया कि सती मतलब चिता सजाई जाती है, उसके ऊपर उसको बिठा दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, और जिंदा जो लेडीज है उसको जला दिया जाता था अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो ये करने के बाद में जो उसके ससुराल के लोग थे उन्होंने ये सती कर दिया उसको, और उसके जो पेरेंट्स थे, रूप कुंवर के जो पेरेंट्स थे, उनको भी पता नहीं था कि हमारी बच्ची जो है उसको सती कर दिया गया। और उनको दूसरे तीसरे दिन पेपर्स में आया कि इस टाइप से कि जो लड़की है वो सती हुई है, और फिर उन्होंने इसको एक क्रिमिनल एक्ट जो करके बताया, और फिर ये पूरा का पूरा मामला चला, गवर्नमेंट के सामने आया, और फिर उन्होंने 1988 में, क्योंकि 1987 में ये इशू हुआ था, तो 1988 में एक गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन पास किया कि सती एक्ट जो था वो
बंद कर दिया गया। ठीक है, सती प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट। ठीक है, तो तब से सती होना ये बंद हो गया। तो दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विमेन। तो इस तरह से अगर हस्बैंड मर जाए और उसके बदले में अगर किसी जिंदा औरत को जला दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये तो सच में क्रिमिनल वाली बात है। तो ऐसा पहले हमारे सोसाइटी में होता था, लेकिन उसके बाद में ये भी बंद हो गया और इसके कारण विमेन जो थी उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ओके, आफ्टर दैट Protection of Human Rights Act. So in 1993, this law was enacted to prevent injustice to men and women. The National Human Rights Commission was also formed for this purpose. In some states, the State of Human Rights Commission was also formed on the same line. This law, which deals with collective operations, the social condition of divorced women and secure workplaces, played an effective role in mitigating justice for women. तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, इसके हिसाब से क्या हुआ कि मैन और वुमेन इन दोनों को समान हक मिले। अगर वो कहाँ पे काम पे जाती है तो वहां पे भी उसको प्रोटेक्शन मिले। अगर वो कहीं पे अगर वो डिवोर्स भी है, मतलब डिवोर्स्ड लेडी भी है, तो भी उसको समाज में मान दिया जाए। तो ये सारी जो चीजें थी, ये ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक्ट में इस तरह से वुमेन को सिक्योरिटी मिली। ओके, आफ्टर दैट रिजर्वेशन फॉर वुमेन। So the Women's Reservation Bill or the Constitution Bill in 2008 is a pending bill in the Parliament of India which proposed to amend the Constitution of India to reserve one third of all seats in the lower house of Parliament of India, in Lok Sabha and in state legislative assemblies of women. In Maharashtra, 50% seats for women have reserved in Jilla Parishad, Gram Panchayat, Panchayat Samiti, municipality and municipal corporation. So reservation for women, आपको भी मालूम होगा कि 33% ऑल ओवर इंडिया में 33% जो है वो सीट्स बुक रहती हैं, और महाराष्ट्र में 50%। जितने भी जगह है वहां पे हर जगह पे वुमेन के लिए अलग सा रिजर्वेशन रहता है। तो इससे भी जो है वुमेन को अपने एक स्पेशल जगह, अपनी एक अलग जगह बनाने को जगह मिल गई। सो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन. Hence, women got the important political right to vote. So, women got equal rights to education and work on par with men. Unhuman practices like sati, dowry, polygamy were banned by law. Women's right to sue for divorce was recognized. They got a lawful share in property if local self-government body seats were reserved for women so that they would have their just shared a political power. So all these we can see, all these things by provided by constitution. Constitution ने जो कुछ हम लेडीज के लिए दिया, जैसे सती जो था वो बैन किया, डाउरी एक्ट थी वो किया कि डाउरी लेना देना गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए, जैसे क्रिमिनल एक्ट। उसके बाद में पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता आदमी जब तक कि उसको उसकी वाइफ का रजामंदी ना हो तब तक। उसके बाद में उसको समान वेतन मिलना, कि उसको जो भी मेहनताना है वो आदमी के साथ में मिला जाए। उसके बाद में अगर कोई डिवोर्स लेडी है तो उसके साथ में सोसाइटी में अच्छी तरह डील होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में ही अगर वो पॉलिटिकल एरिया में आ सकती है, पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो वो आ सकती है, और उसके लिए अगेन रिजर्व सीट रहेगी। और एजुकेशन इज देयर, एजुकेशन तो है ही कि एजुकेशन में समान एजुकेशन उसको मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है दिस में द स्टेटस ऑफ वुमेन पावरफुल इन द सोसाइटी। ये सब चीजों के कारण जो वुमेन का स्टेटस है ये बहुत ही मजबूत हुआ, स्टेबल हुआ सोसाइटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज अनटचेबिलिटी. So in the post independence period, our constitution adopted
द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टिलिटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये सारी चीजें तो हमको मालूम ही है कि शेड्यूल कास्ट जो था, जिसको हम अनटचेबिलिटी वाज रिमूव, मतलब शेड्यूल कास्ट जो था, निम्न जाति के जो लोग हैं, उनको पहले हमारे समाज में सही नजरिए से नहीं देखा जाता था, तो लेडीज की भी वही हालत थी। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका स्टेटस भी सुधर गया। So in the Constitution, 17th paragraph of the Constitution give the education and scheduled caste people and the other backward class. They got reservation in education and also in the job facilities for the development of these status people. Okay. Okay. Scheduled tribes also, and these scheduled tribes people representation in law, board, education, government service, etc. It means what? Like scheduled caste, these scheduled tribe people also get some provisions in the constitution to get good education, and after that they have to solve several difficulties. So government tried to resolve their difficulties. They give education and medical attention to these people, and these people, or the constitution called as Adivasi, is known as scheduled tribes, and they got representation in law boards. It means representation law boards का मतलब है कि वो किसी भी अच्छी जगह पे काम कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, गवर्नमेंट में अगर उनका अच्छा एजुकेशन हुआ है तो वो गवर्नमेंट का कोई भी जॉब कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं, और इन सब के लिए उनको रिजर्व सीट जो है वो दी गई है। आफ्टर दैट, नॉन मेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। So a last section of non-medic pastoral tribes are known as Vimukh जातिज and free liberated जातिज। मतलब अब देखिए, अब ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो लोग हैं, आपको ये शेड्यूल कास्ट तो आप निम्न जाति के हम जिसको बोलते हैं वो है, और शेड्यूल कास्ट मतलब आदिवासी, तो जो जंगलों में रहती थी। अब ये जो है नॉन मेडिक एंड डी नोटिफाइड, इसको हम भटकती हुई जमात बोल सकते हैं, कि अपना पेट भरने के लिए वो जगह जगह पे जाते हैं। जैसे आपको अगर मालूम होगा तो कुछ लोग होते हैं, देखिए जो भेड़ है उसको भेड़ पालन करते हैं, तो वो अपने भेड़ों को चराने के लिए अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। मतलब वो लोग मूविंग रहते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे अपना पेट भरने के लिए मूव करते रहते हैं। सो ये इस समाज से लेके, इन समाज से जुड़े हुए, इस सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनको भी ये वीकर सेक्शंस है। ऑल दीज आर द वीकर सेक्शन। तो ये वीकर सेक्शंस है, इनको बढ़ाने के लिए भी, इनको पढ़ाने के लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, कि अगर जैसे समझ लीजिए कि वो यहाँ वहाँ अपना पेट भरने के लिए, तो जो जिस गांव के पास में रहते हैं, तो उस गांव में इनके बच्चों को एजुकेशन मिल सकता है, उस गांव में से जितने भी प्रोविजंस है उनको मिल सकते हैं। तो इस टाइप के अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको रिजर्वेशंस मिलती है, अच्छे गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं। टू एनहांस ऑल वीकर सेक्शंस, ये जो वीकर सेक्शंस है इनको आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट जो है ये अलग अलग प्रोविजंस निकाल रहे हैं। तो इस तरह से इस समाज के लिए भी उन्होंने रिजर्वेशंस बना के रखे हैं, एजुकेशन के लिए, जॉब फैसिलिटी के लिए, सारी चीजों के लिए, मेडिकल के लिए भी। ओके, आफ्टर दैट माइनॉरिटीज। Now see the minorities. A minority group, by its original definition, refer to a group of people whose practices, race, religion, ethnicity, or the characteristics are lesser in number than the main group of those classifications. ठीक है, माइनॉरिटीज हम किसको बोलते हैं? ये एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप है, लाइक Islam is there, Muslims are there, Jains are there, बुद्धिज्म जो लोग बुद्ध है वो है, आफ्टर दैट सिख आर देयर, जो हमारे, क्योंकि और इंडिया इज अ, अभी हम तो बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो सार्वभौम देश है, सार्वभौमिक मतलब सब धर्म वहां पे रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म जो है वो हिंदू का है। ठीक है, मेजोरिटी हिंदू की है, लेकिन उसके अंदर ये छोटे छोटे हैं, जैसे पारसीज है, मुस्लिम्स हैं, जैन है, सिख है, ईसाई है, इनका ग्रुप
हिंदू के कंपैरिजन में कम है, तो ऑल इज कम अंडर माइनॉरिटीज। तो इन सबको माइनॉरिटीज बोली गई है। तो वी कैन सी कल्चरल डाइवर्सिटी और वी कैन सी डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट लैंग्वेजेस इज आवर कंट्री, बट there are some minorities also. Sir, our constitution give these citizens certain education and cultural rights. So minorities have the rights to protect and conserve their language, culture and tradition. हमारा constitution इनको ये प्रोटेक्ट करता है और बोलता है, प्रोविजन देता है कि आप जो भी ये माइनॉरिटीज है वो अपना कल्चर है, अपना राइट्स है, उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, ट्रेडिशंस है, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस दे गेव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम फॉर दिस प्रोग्रेस। इट मीन्स व्हाट कि ये जो जितने माइनॉरिटीज पीपल है, ये अपना कल्चर, अपना एजुकेशन सेपरेटली कर सकते हैं। मतलब ये अपना अलग स्कूल बांध सकते हैं, जैसे स्कूल मुस्लिम्स है वो अपना अलग स्कूल बांध सकते हैं, जैसे कई जगह पे मदरसे चलते हैं, इस्लाम लोगों के लिए रहते हैं, इस्लामिक एजुकेशन मिलता है। आफ्टर दैट पारसीज है, जैन है, ठीक है, ये सब लोग अपना अपना अलग से स्कूल बांध सकते हैं और वहां पे अपना कल्चर जो है उनके धर्म के बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्कूल जो है वो खुले हुए हैं कि जो उस रिलीजन के बच्चे हैं वो वहाँ पे सीख सकते हैं, वहाँ का कल्चर सीख सकते हैं और वो अपना जो कल्चर है, अपना जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस है, वो आगे लेके जा सकते हैं। सो in this chapter, students, we have learned about the uh, progress of India in concern with empowerment of women and the progress of weaker section. Okay. Thank you. I hope you understand this lesson, what we have revised in this lesson. Okay. Is there any query? Yes, you can ask queries. Yes, Anam. Atul Mishra, Pappu Barai. You have, if you have some problems, you can ask with this lesson. व्हाट्सएप पर वो हटाना नहीं तो चल जाएगा। Yes, if you have some problem, you can share problem. No one? Okay, ma'am. Thank you very much. Okay, ma'am. Thank you. So I wind up my lecture. Okay, ma'am. Yes. Okay. Thank you, ma'am.